Impact of technology and structural changes on rural communities and some policy options. अगर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो रूरल कम्युनिटी पे और स्ट्रक्चरल चेंज का, टेक्नोलॉजिकल चेंज से जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है रूरल कम्युनिटी पे. टेक्नोलॉजिकल चेंज इन्वॉल्व्स अमंग अदर्स टेक्नोलॉजीज लाइक बिग डाटा, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, machine learnings, artificial intelligence, robotic, 3D printing, biotechnology, nanotechnology, renewable energy technologies, satellite and drone technologies. Technological change could contribute to many, if not all, of the goals, especially those related to hunger, health, education, gender equality, clean energy, clean drinking water, industry, innovation, infrastructure, sustainable, safe cities and communities, and climate change. At the same time, technological change poses new challenges for policy makers. Policy making. पॉलिसी मेकर्स के लिए भी न्यू चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से, टेक्नोलॉजिकल चेंज से, और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी नए नए चैलेंजेस आते हैं. इट कैन आउटपेस द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी टू अडॉप्ट टू द चेंजेस दैट न्यू टेक्नोलॉजीज ब्रिंग अबाउट, एज दे कैन अफेक्ट लेबर मार्केट, perpetuation inequalities, and raise ethical questions, different ethical questions. You know, rural development is a matter of increasing concern for developmental economists, policymakers in the developing countries and in the underdeveloped countries. The differential rate of growth in urban and rural areas in many developing countries have tended to produce an urban-rural polarization of income. कि इसमें एक वाज़े आप देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रूरल ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन ग्रोथ एंड अर्बन डेवलपमेंट में एक जो वाज़े फ़र्क है वो रूरल अर्बन जो इनकम पोलराइजेशन है उसको जन्म देती है. एग्रीकल्चर इज़ मोर देन जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड, बिकॉज agriculture is the core activity and main source of livelihood for billions of rural people. Its evolution will shape the process of economic, social, and environmental change. Fast-growing urban industrial areas is expressly modeled on that of developed countries. Working and living condition of many urban residents approach those of rich countries. जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ तो वहाँ के जो अर्बन एरियाज़ के लोगों का लाइफस्टाइल है वो सेम उसी तरह का लाइफस्टाइल है जिस तरह का एक डेवलप कंट्री का या एक रिच कंट्रीज़ के लाइफस्टाइल होता है. ये ड्यू टू फास्ट ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं. तो अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, ऑन द अदर हैंड जो रूरल पॉपुलेशन है वो वर्क एंड लाइफस्टाइल उनका रिमेन लार्जली ट्रेडिशनल, अभी भी उसी तरह है. क्या इसकी सिर्फ ये वजह है कि वो सिर्फ जो उनकी अर्निंग है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ एग्रीकल्चर पे? There are multitude causes of rural underdevelopment and persistence poverty. 3 sectors, rural, urban and external, ये जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं, एक रूरल सेक्टर है, एक अर्बन सेक्टर है और एक एक्सटर्नल सेक्टर है. तो इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेजेस बिटवीन द लोकल रूरल इकोनॉमी एंड फर्स्ट द वाइडर नेशनल and particularly urban market and then with the world
जो एक्सटर्नल फैक्टर हम बात कर रहे थे वो वर्ल्ड की बात कर रहे थे, वो इंटरनेशनल सेगमेंट की बात कर रहे थे। तो जो रूरल सेगमेंट है, जो रूरल सेक्टर है, उसका अर्बन मार्केट के साथ और फिर उसके बाद वर्ल्ड मार्केट के साथ जो कनेक्शन है, जो लिंकेजेस है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी फोकस ऑन द process of economic and social transformation, the operation of market forces, and the interaction between sectors in order to shed light on obstacles of rural development, which is ultimately leads to prospects for the future. The Pakistani agrarian society, for longer period of history, cultivated its field in a primordial way. Agriculture operations through indigenous breed of bullocks, plough, and levelers. Such methods of cultivation, coupled with organic fertilizers, surplus cannot be taken to the market. इस सारी ट्रेडिशनल सिचुएशन में जो सरप्लस है वो मार्केट में नहीं जा सकता, उसकी इतना सरप्लस हो ही नहीं पाता। एग्रीकल्चर गॉट एन इम्प्रूवमेंट बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई उससे एग्रीकल्चर सेक्टर की में भी इम्प्रूवमेंट आई। दीज इनोवेशन ऑन द वन हैंड सर्व्ड मच ऑफ मैनुअल लेबर एंड ऑन द अदर हैंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजी दस हैज प्रूव्ड टू बी ए मल्टीप्लायर। टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया कि ये मल्टीप्लायर है। आपकी जो है मैनुअल लेबर को भी उसने कम किया और उसने प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस किया। इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स सम ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स either from the government sector or from any private sector, introduced new technology inputs in the villages with the objective of giving self sufficiency in the peasants. जो farmer है उनमें self sufficiency create की जाए। Improved variety of plough cattle along with an appropriate technology has been introduced to the peasants. The tractor, lorry, threshers and a large number of techniques have been given to the rural people. New agricultural input में the chemical manure and insecticides have added much to the farm produce. Much of our food deficiencies have been covered by the agricultural growth due to technological advancement. जो agriculture में growth आई, जो productivity में increase आई. The green revolution is also the result of this new technological input. National technological capability of a developing country like Pakistan as one may be defined in terms of capacity to generate new technologies or assimilate imported technologies through adaptation and innovation. अब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी एक मैटर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, और जो इनोवेशन है उनकी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी एक बहुत बड़ा मैटर है। अपग्रेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में रूरल एरियाज में यूज हो रही हैं उनकी अपग्रेडेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड डिफ्यूज एंड डिसेमिनेट टेक्नोलॉजीज मोस्ट वाइडली, जितना वाइडली डिसेमिनेट होगा उतनी ही ग्रोथ, रूरल ग्रोथ में, एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा होगा। रूरल टेक्नोलॉजीज originate either from within the rural areas, traditional technologies, innovations, or are transferred to these areas from a number of sources of technological information, including international and regional technology institutions. जो research institutions हैं, जो research करते हैं एग्रीकल्चर पे, उनके थ्रू private और semi public institutions, national technological institutions, government departments like public works department, जो safe drinking water का, water supply के हवाले से जिनका काम है, agriculture department, agriculture extension department जो awareness create करता है, फिर agriculture research institutions,
जैसे पाकिस्तान में बड़ा फेमस इंस्टीट्यूशंस अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनके थ्रू, और फिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स, फिर पोल्ट्री डिपार्टमेंट्स उनके थ्रू, फिर जो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू, फिर एक्सपर्ट कंसल्टेंट एंड वॉलंटियर्स जो हैं उनके थ्रू। फिर इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और उसके इम्पैक्ट की रूरल एरियाज़ में। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशन। बेसिकली हर एरिया की कंडीशन में फ़र्क है, तो जो लोकल कंडीशन की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है होता है इसमें। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़रूरत है वो लोकल एरिया की जो कंडीशन है उसको जानने की बड़ी अहम ज़रूरत होती है। दिस इज़ ड्यू टू देयर लिमिटेड फाइनेंशियल मीन्स की वजह से भी हो सकता है, एंड टेक्निकल नॉलेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, which do not allow and support them to undertake in-depth study. In-depth study उस लोकल एरिया की नहीं हो सकती, उस लोकल एरिया के क्लाइमेट से, उस लोकल एरिया के इन्वायरमेंट से, उस लोकल एरिया की जो सॉइल कंडीशन है उसकी वो इन-डेप्थ स्टडी को रिसर्चेज नहीं हो पाती, उसकी वजह से जो है ये इश्यूज आते हैं। फिर इसके अलावा लैक ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन एंड निगलेक्ट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, तो लोकल एरिया की पार्टिसिपेशन नहीं होती उसमें, और जो उस स्पेसिफिक एरिया में कुछ बहुत सारे लोकल एरियाज हैं जिसकी अपनी कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज वो ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत इन्हांस हो रही होती है, तो वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को निगलेक्ट किया जाता है और जो बाहर से रिसर्च करके चीज़ आती है उसको इम्पोज किया जाता है। मोस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान ऑपरेट बाय वे ऑफ ट्रांसफर, वेयर बाय द टेक्नोलॉजी इज first developed outside of the rural area, outside of the local area। किसी रिसर्च फील्ड में वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हुए कि उस लोकल एरिया की क्या ज़रूरत है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है उस एरिया में। तो ये जो आउटसाइड पे रिसर्च करके इम्प्लीमेंटेशन है ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। दिस अप्रोच निगलेक्ट्स द पोटेंशियल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन फॉर टेक्नोलॉजी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ये फिर जो रूरल पॉपुलेशन की जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है, जो टेक्नोलॉजी की उन्होंने करनी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होती है ये वाली टेक्निक। तो जो लोकल एरियाज़ को अगर हम लोकल जो इनपुट है वो लें, लोकल एरिया की पार्टिसिपेशन करवाएं, लोकल एरिया की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको साथ लेके चलें, तो उससे इन सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। तो ये ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट था रूरल एरियाज़ में, जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है डे बाय डे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में जो रिसर्चेज हो रही हैं एग्रीकल्चर उस पर, जो पेस्टिसाइड सेक्टर में जो चेंजेस आ रही हैं और स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है, तो ये सारा ओवरऑल जो है रूरल कम्युनिटी पे क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं।